mostly SSP is similar, same for men and women. What difference do I feel is that individual obstacles में simplicity पे ध्यान दो, please keep it simple. और apart from this, there was one more thing जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने PIQ पे ध्यान दो. You be honest about your strengths and weaknesses to yourself. एंड देन अपना PIQ में ऐसा कोई झंडे नहीं गाड़ना है. व्हेन यू आर ट्रू टू योरसेल्फ तब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको स्पेसिफिक्स पता है क्या चीजें आपने करी, क्या चीजें आपने कब करी. तो ऑल दो स्पेसिफिक्स आर देयर, यू डोंट हैव टू think too much about it. Okay, guys. So welcome to this another episode of one of the podcasts with my students who got recently recommended and joining Indian Naval Academy. She is Khushi Mishra. She was in my batch 28. She just got recommended for Short Service Commission, General Service Executive Branch entry. And this podcast is really special for me because I also got commissioned into the Navy in the same branch, Short Service Commission, General Service Executive Cadre. She got recommended from NSB Vizag. When did you get recommended, Khushi? So I got recommended on 26 August 2020. Yes, sir. Okay, and she's just recently got her joining instructions. She's joining the INA very shortly. So, welcome to this episode, Khushi. Thank you so much for giving us time. Thanks, sir. So, let's start. Why don't you tell audience something about yourself? Let's start with your educational background, Khushi Mishra. Okay. So I'm Khushi Mishra and I belong to Lucknow, and where I did my education from class 10th and class 12th. I completed my class 10th education from Delhi Public School, Indranagar, Lucknow, and there I scored a CGPA of 9.6. And after that, I completed my 12th class from Rani Lakshmi Bai Memorial School. I scored 90.40% in non-medical physics, chemistry, math, PCM with computer science stream. And after that, I went to Chennai to complete my BTech in computer science engineering from SRMIST, that's in Kattankulattur. And there I scored a CGPA of 9.58. And apart from these academics, after that, I have been working since 2022 in Amdocs in Pune, Maharashtra. Yeah, that's cool. काफी मजे की जर्नी है. पहले से ही पढ़ाकू है यार तू, खुशी. Yes, sir. So, why don't you tell थोड़ा सा about your family background also? Okay. So in my family, I have my father, who's a retired executive civil engineer from a government PSU called UPSI-CDC, that's Uttar Pradesh State Infrastructure and Development Corporation. And also, I have my mother, who is a government supervisor at ICDS, that is Integrated Child Development Services. And I also have an older sister who is a homemaker, and she's with her family, and that's it. Okay. So, what games and sports do you play? How do you keep yourself physically fit and mentally fit also? Yes, sir. So, although I started playing games and sports a bit recently, because in school time or even in college time, I wasn't playing it actively enough or representing at any level. So, I like to play badminton. Some amount of badminton I play that helps me be active and fit. And I also like to go on runs and jog sometimes on short runs that I started only gradually just to keep myself fit. And mentally, I would say I like solving puzzles. That's one of my hobby, that I like solving Sudokus. Yeah. तो इसका मतलब ये मिथ तो टूट ही गया है कि हाँ तुम कोई बहुत ही बड़े स्टेट नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं हो तो तुम्हारा रिकमेंडेशन नहीं हो सकता. ऐसा कुछ नहीं है. जनता प्लीज समझ लो ये चीज. दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग द ट्रूथ आउट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. So let's start the other formal discussion. Um, so you were with me in batch 28, right? Yes, sir. So, how was this batch 28? Tell me, you were, my batches are such that कि जिसमें मैं लड़के लड़कियां सब एक साथ ही पढ़ाता हूँ, कोई किसी के लिए कुछ अलग नहीं है. So, being a girl in the class, how was the journey? How was the learning different for you? What did you feel in the class? So, interacting with both boys and girls and actively participating in this discussion, मतलब ऐसा था कि सबके thoughts and सब
कोलैबोरेट कर रहे हैं टू अ कॉमन कंसेंसस, किसी चीज पे डिस्कशन हो रहा है, तो इट वाज वेरी गुड. इट वाजंट एनीथिंग डिफरेंट देन अ नॉर्मल क्लासरूम लर्निंग. एंड सबसे अच्छी बात तो सर कि ऑनलाइन था. आई वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर समथिंग दैट आई कैन actually use by being at the comfort of my home. या फिर I'm also doing a job by the side, so that can't allow me कि मैं 14 days या कितने भी दिन कहीं छुट्टी लेके रह सकूं and then attend classes. So that was the best thing कि online रह के भी you were connecting with us and we were all collaborating, learning in your class. So it was all the same. And being a girl, sir, इतना कुछ different नहीं था. It was very good. It was very much a learning experience, very informative. ओके. सो हाउ डिड यू मैनेज यार, काम करते करते और फिर क्लास क्लास के टाइमिंग्स और फिर काम भी है, फिर क्लास में भी आना है, कैसे मैनेज किया ये सब? यस सर. सर यूजुअली आपकी क्लासेस सुबह 7 बजे से होते थे, 7 o'clock. सो आई यूज टू वेक अप shortly before the class and then I used to do the class. Since I have a 1 to 10 p.m. shift, like 1 p.m. to 10 p.m. shift, so I usually sleep a bit late because of that. But then I managed. I woke up early and attended class and then did some yoga, pranayam. After that, got on with my day. That actually allowed me to uh, reduce my wake up times and sleeping cycle थोड़ा improve किया मैंने. ओके, वेरी नाइस. So Yes. tell me, is the selection process at the board, various SSBs, is it any different? Like, how are the tasks different for women in the SSBs? What do you feel? Mostly SSP is similar, same for men and women. What difference do I feel is that individual obstacles में थोड़ा variation रहता है. For example, there is double barrel jump, which is different for lady candidate and a gent candidate. तो एक दो ऐसे obstacles होते हैं जो हम लोगों के लिए अलग होते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए अलग होते हैं. Screen. And yes, sir, screen jump. And there's also one more thing that in psych test, there are pictures which I feel कभी कभी कुछ pictures में females are more prominently shown कि you can perceive them easily as a main character. So sometimes the pictures are like that. I'm very glad and happy कि ये तूने नोटिस किया. Yes, sir. पिक्चर्स आर डेवलप कि 10+2 के जो बच्चे होंगे, चाहे एनडीए जा रहे हैं या 10+2 बीटेक जा रहे हैं या 10+2 टीईएस, जिसको कॉलोकियली टिल्लू एंट्री बोलते हैं, जो सीएमई जाते हैं बच्चे 10+2 के बाद में. तो इन 10+2 के जो पिक्चर्स होंगे वो अलग होंगे. आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता. एयरफोर्स तो खैर 10+2 डायरेक्ट एंट्रीज ओनली एनडीए. एंड लड़कियों के पिक्चर्स अलग होते हैं और ग्रेजुएट्स के पिक्चर अलग होते हैं. Okay, sir. Pictures are developed through a very standardized process. You need to have a lot of tests that are need to be done while developing a picture, and you gather a lot of data. They're called as test, retest, validity, concurrent reliability. You have to write an H naught. तो काफ़ी सारा scientific process है, but I'm really glad कि तूने ये notice किया. Yes, sir. तो तेरे प्रिपरेशन टाइम में ये बता कि व्हाट ऑल हर्डल्स केम मेंटली फिजिकली, क्या क्या हर्डल्स हैं एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम, एंड हाउ वाज दिस क्लास हेल्पफुल टू यू इन ओवरकमिंग ऑल दोस हर्डल्स? Okay. सर पहला तो एक नोशन ये दिमाग में पहले से बना था कि फिजिकल फिटनेस अगर नहीं है तो मुश्किल है ये चीज, क्योंकि फिजिकल फिटनेस तो चेक होती है ओवर द कोर्स ऑफ 2 days भी. मतलब हम जब आउटडोर टास्क कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग टुगेदर इन अ ग्रुप कि हम कोई टास्क को अचीव करना चाहते हैं, तो फिजिकल फिटनेस आई फेल्ट कि इस पे काम करना पड़ेगा. एंड एज आई प्रीवियसली मेंशन, मैंने कहीं भी कुछ ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया है स्पोर्ट्स में किसी भी लेवल पे. आई प्लेड, ठीक है, एज अ लेजर एक्टिविटी. सो मोस्टली यही चीज थी जिसपे मैंने वर्क किया कि मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट स्टार्ट गेटिंग अ बिट इन शेप, बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग एट अ डेस्क जॉब. आईटी जॉब थी, तो हमारा पूरा 8-9 घंटे तो बैठना ही होता है, काम रहता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज वेल हमारी स्लीप साइकिल, एज आई मेंशन, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है अकॉर्डिंग टू आवर शिफ्ट्स. सो ओवरऑल फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दिया. इन दिस सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, सम जॉगिंग, ताकि आई गेट इन टू हैबिट ऑफ रनिंग, डूइंग ऑब्स्टिकल्स क्विकली, टू एंड फ्रो, इधर उधर भागना है अगर ग्राउंड पे, तो दैट डजंट हर्ट मी अलॉट. सो आई वांटेड टू गेट इनटू दिस मेंटली, इनटू अ माइंडसेट कि हाँ भाई भागना है, ये कूदना है, या फिर ऊपर आपको बर्मा ब्रिज या ऐसे टाइप का कुछ चढ़ना है, तो यू डोंट बी अफ्रेड, यू जस्ट
रिमेन काम एंड कंपोस्ट, वो वाली चीज। एंड फिजिकली तो इन शेप आना था, एंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था माइंड को मेकअप करना। आई थिंक व्हेन यू हैव इट इन माइंड कि हाँ भाई मुझे इतना दौड़ना है या इतनी दूर और दौड़ना है, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज अगर आप मेंटली इतना नहीं सोच पाते हो कि चलो ठीक है, इतना पुश नहीं करते हो, देन यू फेल फिजिकली एज वेल, आई फील। तो मेंटली यू नीड टू बी एट दैट माइंडसेट। तो अगेन मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम थोड़ा हेल्प किया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टार्ट किया। इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट यही है सर, ये वाले हर्डल्स दैट आई ओवरकम। इसीलिए बोलता हूँ ना मैं कि चीज़ें पहले दिमाग में एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिजिकली यस सर। एग्जीक्यूट पहले। यस सर। So how did my teachings impact your preparation? Sir, your teachings, firstly, though, I found you via a YouTube video that was mainly about a PPDT, how a PPDT is supposed to be conducted. So I watched the entire 38-minute video, and then I realized that, okay, the teaching that you have, that STAR method, STAR, situation, task, action, result, that thing, that actually uh, brought me to this, to attend this class. And you have certain funda ki ek STAR method, that is actually a best way to solve any problem, not just आपके एसएसबी में but also in life। आप छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, आप स्टार मेथड लगा सकते हो टू बेटर ऑर्गेनाइज इट इन सच अ वे कि सामने वाला भी समझेगा, आप तो बहुत अच्छे से ही समझोगे। अगर आप अच्छे से समझ गए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो सामने वाला भी समझेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टार मेथड, व्हाट आई फेल्ट was different for me was, सर जो एक आप बोलते हो कीप इट सिंपल स्टूपिड, वो वाला, कि आप सिंप्लिसिटी पे ध्यान दो, प्लीज कीप इट सिंपल। और अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर वाज वन मोर थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आप अपने पीआईक्यू पे ध्यान दो। यू बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू योर सेल्फ, एंड देन अपना पीआईक्यू में ऐसा कोई झंडे नहीं गाड़ना है, एकदम कंप्लीटली डाउन टू अर्थ, जितना है उतना सेल करो, नॉट ओवर सेल, नॉट अंडर सेल। एंड पीआईक्यू पे ही बेस करो अपने, यू नो, हम लोग जो पिक्चर्स पे स्टोरी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पीपीडीटी, टैट, साइक, वॉट एवर इट इज, इट शुड बी लाइक व्हेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, तब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको स्पेसिफिक्स पता है क्या चीजें आपने करी, क्या चीजें आपने कब करी। तो ऑल दो स्पेसिफिक्स आर देयर, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट। तो स्टोरी इजिली बनती है, वैट इजिली होता है, आपका एसआरटी इजिली होता है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली डन समथिंग लाइक दैट। आप पिक्चर से रिलेट करके अपने पीआईक्यू से रिलेटेड कोई भी थीम पे स्टोरी लिख सकते हो, बिकॉज यू हैव एक्चुअली डन दैट। एंड यही चीज मैंने भी फॉलो करी आपकी क्लास में, मतलब मुझे बहुत इफेक्ट इसका लगा, ये बहुत अच्छा चीज लगा मुझे। तो अब रियल लाइफ में भी हेल्प हो रहा है। यस सर। सो कमिंग टू द क्लासिक क्वेश्चन, ये लोग बोलते हैं ना कि यार ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो ऑनलाइन में हम जीटीओ कैसे करेंगे, वो रस्सी फट्टा बल्ली प्लैंक बल्ली रोप, इट कैन बी अब्बा जब्बा डब्बा चेन ट्रायंगल एंगल इन्फिनिटी, कोई भी हेल्पिंग मटेरियल हो सकता है। सिर्फ रस्सी यस। फट्टा बल्ली होगा ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। यस सर। तो जब तुम लोग क्लास में आए थे, बैच 28 तो बहुत पुरानी बैच है, तब तो डिजिटल जीटीओ ग्राउंड पूरी तरीके से नहीं था मेरे पास में, अलग अलग पार्ट्स एंड पीसेस में था। अब उसको जोड़ के मैंने एक फुल फ्लेजेड डिजिटल जीटीओ ग्राउंड तो बना दिया है, मतलब एक्चुअल फील आएगा, इट्स लाइक अ वर्चुअल रियलिटी फील की एक्चुअली जीटीओ ग्राउंड ऐसा होता है। तो व्हेन यू वर लर्निंग द जीटीओ टास्क, द जीटीओ टेक्निक ऑफ असेसमेंट, जो एक्चुअल असेसमेंट है, तो what are your comments about that? Ki how is this online system of learning about group testing or group situational task for that matter? How effective it is? What is your opinion about it? सर, ऑनलाइन लर्निंग, वॉट एवर यू टॉट, मतलब जितना भी आपने समझाया वॉज वॉट आई फील। हम लोग जो अपने साइंस के क्लासेस में जैसे पढ़ते थे, स्ट्रिक्ट फंडे पढ़ते थे, कि अगर आप, अब जैसे we have to use these helping materials to get across the obstacles. What do we do? Usually people call that structure as a cantilever, बट what that structure is, उसमें क्या क्या components हैं, आपका एक फिक्स्ड एंड है, एक मूविंग एंड है, एक फलक्रम है। आप जो भी चीजें वो चीजें यूज करते हो, आप उसको इवन इन इन अ पिक्चर पिक्चर ऑफ एनी ऑब्स्टिकल यू कैन सी। तो अगर आपने एक बार वो समझ लिया कि फिक्स्ड एंड क्या है, फलक्रम क्या है, मूविंग एंड क्या है, तो आप पिक्चर देख के भी आप बता दोगे कि यहाँ से मैं ये हेल्पिंग मटेरियल ये वाला डालूंगा, यहाँ से ये फंसाऊंगा, ये बांधूंगा, whatever you have, that idea is clear. And
what I felt was even in online class आपने बहुत अच्छे से फंडे बताए ये कि मतलब आपको कैसे क्या ऑब्जर्व करना है कि फिक्स्ड एंड कहाँ हो सकता है, मूविंग एंड कहाँ होगा, एंड आपका फुलक्रम क्या एक्ट कर सकता है इस चीज में. सो इवन एज यू वर showing us that those pictures of structures in online mode, we were able to resolve that कि हाँ this can be solved like this, so we can go through this obstacle like this. It was good. तो बेसिकली कोई फिजिकल जीटीओ ग्राउंड की जरूरत तो है नहीं, नहीं सर. क्योंकि अगर फिजिकल स्पेस अगर है, दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, फिजिकल स्पेस भी अगर मेरे पास में है तो भी द रीच इज स्टिल लिमिटेड. एक अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोग जाते हैं एसएसबी देने के लिए हर साल 21 बोर्ड्स में. अगर ये इन्फॉर्मेशन सारे 3 लाख लोगों के पास पहुंचानी है, या फिर अगर एज और एजुकेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से अगर मैं इसको फिल्टर डाउन कर दूं एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पीपल हु कैन जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो दैट नंबर विल बी क्लोज टू अबाउट 60 lakhs. लेकिन आते 3 लाख ही लोग हैं एसएसबी में. 57 लाख को पता नहीं होगा एसएसबी के बारे में एग्जैक्टली है क्या, या फिर उन लोगों ने वो ध्यान नहीं दिया है कि फौज में ऑफिसर बनना है तो व्हाट्स द मेथड, व्हाट्स द प्रोसेस. एंड ऐसे काफ़ी लोग हमें मिलते भी है कि सर हमें पता नहीं था सही टाइम पे फौज में जाना कैसे. आई कीप मीटिंग सो मेनी पीपल हियर इन बैंगलोर, द स्टार्टअप वर्ल्ड, द स्टार्टअप इकोसिस्टम, द वीसी इकोसिस्टम, द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, कि had we known probably would have also joined. Like, yeah, last to last evening I met a guy who was a chief developer, one of the senior developers in electronic arts जो games बनाते हैं. He is a ward of a Air Force warrant officer, but मतलब उसने कभी ट्राई किया नहीं. एंड बिकॉज ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ बचपन से ही वो घर छोड़ के बाहर निकल गया था, एंड ही रीच्ड अ वेरी हाई लेवल इन इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स. तो अगर मुझे बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचाना है कि एग्जैक्टली जीटीओ ग्राउंड होता क्या है, तो इट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. इट्स नॉट अ फिजिकल जीटीओ ग्राउंड दैट आई कैन यूज एंड आई कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल एंड masses in the country. So that's why this concept of digital GTO ground is out there. And of course, it has to be imparted by a GTO. उस GTO को ही पता होगा एग्जैक्टली उस टास्क में करना क्या है और वो देखता क्या है, राइट. सो वी जनरली टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज द टास्क का सेटिंग एंड व्हाट जीटीओ लुक्स एट. ये पता होना चाहिए ताकि एक स्टूडेंट पता कर सके कि उसका डेल्टा क्या है, उसको क्या गैप फिल करना है. ठीक है. सो हाउ इज द साइक पार्ट हेल्प यू? हाउ वाज द साइक learning in the class? So psych learning was very good, and I got to know where I could have been lacking. That as I mentioned, that PIQ पे बेस करो अपने, जो PIQ आपने भरा है उस पे बेस करो अपनी स्टोरीज, एंड दैट इज व्हाट हेल्प. दैट वाज एक्चुअली व्हाट मेड दिस बेटर फॉर मी कि हाँ अभी मुझे साइक इवैल से डर नहीं लगता. डर इन द सेंस कि स्टोरी कैसे बनेगी एंड हाउ डू वी एक्चुअली क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट. It's just our PIQ. And immediately, matlab, after practicing that, like going through my PIQ, honestly, ekdam transparently, stories became easier and words ke bhi sentences बनने लगे. Everything was good. Okay. So, and how about the interview technique? Because you know that the theory is taught by me and interview Yes, sir. is taken by someone else. So, Yes, sir. what are your comments about it? So it helped me overcome the initial hesitation, because what happens is that my one more conference was there. That was 2 years ago. And 2 years is a long time in between when you have no SSB attempts in which you have reached that level, conference wale. So that mock interview actually with Pankaj sir, it helped a lot. And I also got to know my shortcomings on which I could further on improve, and it was overall very informative. So, अच्छा यार, ये तो पूछा ही नहीं तेरे से. टोटल एसएसबी अटेम्प्ट्स कितने हुए ये रिकमेंडेशन के पहले? सर इसके पहले मेरे 4 अटेम्प्ट्स थे, एंड उसमें से एक कॉन्फ्रेंस था दैट वाज इन 2022 फॉर आर्मी, एसएससी टेक वुमेन. ओटीए. यस सर. ओके. एंड उसके पहले 3 यू वर स्क्रीन्ड आउट. Sir, screen out. My first attempt was AFSB 1 RSC for AFCAT entry. It was a screen out. Second attempt was Allahabad SSC Tech entry. This one only. It was conference out. And then the other two were Bhopal and Bangalore.
Bhopal one was for Army, SSC Tech Women. It was screen out, and Bangalore was for observer entry, and it was also screened out. So Vizag was the board for you. Vizag was the board. Yes, sir. So tell me one thing यार, what's your personal opinion कि तेरे देख तेरा एजुकेशनल करियर, तेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा है. यू हैव ऑलवेज बीन 9 पॉइंटर. ठीक है. Yes, sir. व्हाट डू यू फील कि ये स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का क्या वेटेज है, तेरे को क्या लगता है सिलेक्शन में? सर व्हाट आई फील, आपको कट ऑफ जो क्लियर करनी होती है उतना होता है सिलेक्शन में काम उसका. उसके बाद तो सर जो आप पीआईक्यू में लिखते हो एंड उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उस हिसाब से ही आपको वो जज एंड इवेल्युएट करना चाहते हैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं. व्हाट अबाउट जीटीओ? जीटीओ के पास तो पीआईक्यू फॉर्म होता ही नहीं है. हाँ सर. सर फिर आप जैसा दो अक्रॉस द 2 days वेरियस टास्क में आप परफॉर्म करते हो अपना प्रेजेंट टास्क पे फोकस करके. स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का नॉलेज सर एज फार एज मतलब व्हाट आई फील थोड़ा बहुत सिविक नॉलेज इज गुड. अगर आपको स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में सिविक नॉलेज मिल पता है, दैट इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क. अगर आपको ये आइडिया है जो हम लोग सिविक्स में पढ़ते थे 9th 10th उसमें कि भाई आपकी रेलवे स्टेशन है या ऐसा कुछ है तो उसमें कौन कौन सी हेल्पलाइंस एंड ऑल अवेलेबल होती हैं. बेसिकली व्हेन यू आर रफली अवेयर कि हाउ एन एंटिटी वुड हेल्प अनदर एंटिटी, मतलब उसमें हेल्पलाइंस हैं, उसमें पुलिस फोर्स है, क्या क्या चीजें हैं. इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, दैट्स मोर देन इनफ. तो दैट वाज तो सिचुएशनल अवेयरनेस है, ये तो ठीक है. यस सर, सिचुएशनल बट अवेयर. बट यूनिवर्सिटी का कोई वैल्यू है क्या? लाइक कोई आईआईटीएन आ गया या कोई एनआईटीएन है तो भाई ये रेकमेंड होगा, और कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज वाला है तो वो रेकमेंड नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? नो नो सर, ऐसा कुछ नहीं है. चलो, तो कोई ये भी यूनिवर्सिटी का रिकमेंड हो सकता है. ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बिल्कुल सर. तो जनता को मैं ये भी बता दूं कि आईआईटीएंस भी आ रखे हैं मेरे बैच में व्हेन आई वाज जीटीओ इन 12 एसएसबी, एंड आई हैव नॉट रिकमेंडेड देम. आई हैव नॉट रिकमेंडेड देम. एनआईटीएंस भी आए हैं, कुछ एनआईटीएंस रिकमेंड हुए हैं, कुछ आईआईटीएंस भी रिकमेंड हुए, कुछ नहीं भी हुए. सो इट इज़ योर परफॉर्मेंस ऑफ द डे. 5 दिन में तुमने क्या किया उस दिन. ओके. सो क्लासिक क्वेश्चन. अभी तुमने 4 बार तुमने एसएसबी दी, फिर 5वीं बार रिकमेंड हुए तुम. तो व्हाट्स योर मोटिवेशन टू जॉइन द आर्म फोर्सेस एंड व्हाई स्पेसिफिकली नेवी? क्यों ज्वाइन करना है? सर ये स्टार्ट हुआ एक्चुअली, मैं कॉलेज मैंने जब ज्वाइन किया चेन्नई में, तो वहां हम्म. से जैसे अलग अलग लोग आते हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप बनता है, तो फ्रेंड्स के ग्रुप में 2 3 लोग फौजी बैकग्राउंड के थे, फौजी बच्चे. तो उनके बारे में सबसे पहले तो मुझे यही आइडिया हुआ कि अच्छा, दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई, अलग अलग जगह रहे. एंड व्हाट आई नोटिस वाज कि दे हैव देयर ओन स्टोरीज, मतलब उनका एक्सपोजर भी थोड़ा अलग कि दे गॉट टू participate in so many competitions, so many things they got to do, and hobbies and interests, that's very important thing कि सबके कुछ ना कुछ थे. And that made me realize कि हाँ, it's a good way to actually live a life like this. ये life, it actually attracted me because I come from a civilian background, तो मुझे इतना नहीं पता है. तो ऑल दिस थोड़ा थोड़ा जो एक्सपोजर मुझे पता चला, एंड ऑल्सो फ्रेंड्स का भी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फर्दर ज्वाइनिंग द फोर्सेस, एंड दैट ऑल्सो मोटिवेटेड कि हाँ चलो वी कैन प्रिपेयर टुगेदर, एंड देन वी मोटिवेटेड ईच अदर to join the forces, and Navy specifically because one of my friends, she uh, gave me an idea that uh, this is like this, that Indian Navy she is currently serving. So So, this shoot with you is very special because this is being shot on the Navy Day, 4th December, 53rd Indian Navy Day. And Navy में क्या opportunities है going forward? Navy as a tech-savvy force, it brings an ocean of opportunities for someone to grow. जो करना है वो कर सकते हो. You can become a fighter pilot, you can become a chopper pilot, you can become a MR pilot, you can become an hydrographer, you can do watch keeping at sea, you can get into merchant shipping post your naval career, you can do diving, you can do adventure, you can play any kind of sport. If you have that in you, you can go and represent India at Olympics. So many things are available in the Navy, and it's a very small family. It's a very tight-knit family, and I mean, I love Navy. My time in the Navy was one of the best times that I lived. Uh,
सो मैं जनता को ये भी बता दूं कि आज मतलब 4 दिसंबर को ही हमने एक पॉडकास्ट रिलीज किया ऑन आवर अदर चैनल रॉजर दैट विद एनकेसी, which was shot with Vice Admiral Surinder Pal Singh Cheema, PVSM, EVSM, NM, Gallantry, where he talks about the Navy and the ocean of opportunities that are available, and the only officer to have served as Commander in Chief 4 times in the history of independent Bharat, amongst three services, all three services. So, yes, good decision, I would say, Khushi, choosing Navy as a service. Yes, sir. Any message that you would like to give to young girls who are aspiring or looking forward to, making a career in the armed forces or specifically Navy? क्या बोलना चाहती हो? Because now the gates are open and the day is not far that women might go and sit in the command of a warship also. So, what is your message to the Janta? Yes, sir. I would only like to say to all the girls that dream big and work hard towards achieving your dream. It's all possible. Just stay focused. अपने गोल पे आप फोकस रहिए and stay humble. आपसे कोई भी ऐसे help मांगे, you do that and just keep your head down, stay focused, keep on working towards achieving your goal, and just be with your support system as well, because your support system helps you when you're away from your family and places. So hota hai life, it's all a part of life, ups and downs. Everything will go on. ठीक है? And you can do it. You can achieve your dreams. Just keep on working hard. So it's great talking to you, Khushi. Thank you so much for taking out time, and very soon you'll be in the academy. Thank you, So sir. I wish you all the very best for your time in the academy. Hope you pass out with flying colors, with certain appointments or achievements that a cadet, under trainee cadet can acquire, or rather achieve for or aim for in the academy. All the very best. And Shano Varuna, may the ocean god be auspicious unto all of us. Thank you, sir.